کو دعوت سخن پیش کرتا ہوں، مائک پر تشریف لائیں۔ لہو کو لہو لکھتا ہوں میں، پانی نہیں لکھتا۔ لہو کو لہو لکھتا ہوں، پانی میں نہیں لکھتا۔ محلوں میں جو ناچتی ہے رانی، میں اسے نہیں لکھتا۔ مجلس کی صداقت پہ دنیا کرتی ہے ناز، قاتل کو لکھتا ہے قاتل، کبھی مسیحا نہیں لکھتا۔ جمشید پور پشچمی حلقے انتخاب کے آج کے انتخابی جلسے میں صدارت کر رہے صدر جھارکھنڈ جناب بھائی شاکر صاحب، ہم سبوں کے سپہ سالار، آپ کی امیدوں اور آپ کے اعتماد حاصل کرنے والا رہنما، آپ کے دکھ سکھ پہ کام آنے والا، نیتا سے زیادہ وفادار بیٹا جناب بھائی راشد حسین عرف جناب بابا خان صاحب، حیدرآباد سے آئے ہوئے الیکشن کے انچارج جناب بھائی مرزا ریاض الحسن آفندی صاحب، معزز رکن کونسل تلنگانہ اسٹیٹ جناب بھائی انجینئر سرفراز عالم صاحب، کارپوریٹر جناب بھائی انجینئر آفتاب احمد صاحب، تاسیسی رکن وہ جنرل سیکرٹری بہار، یہاں پر موجود پارٹی کے دیگر ذمہ داران، غیور نوجوانوں، بزرگوں، عزیز اور پیارے بچوں، میرے ہندو مسلم ساتھیوں، میری نیک ترین ماں بہنوں اور بیٹیوں اور میڈیا کے دوستوں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ آپ نے کئی سحر انگیز اور ولولہ انگیز تقریریں سماعت کی ہیں۔ میں اس وقت آپ کا پرانا بہاری بھائی اس وقت آپ سے ملنے آیا ہوں اور آپ سے فریاد کرنے آیا ہوں کہ بہار کے اس خطے میں جس میں ہماری اور آپ میں سے بیشتر کی پیدائش ہوئی ہے، اگر بہار میں مجلس اتحاد المسلمین نے انگڑائی لی ہے تو یقیناً ہے کہ جھارکھنڈ میں بھی اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے قدم یہاں پر جمائے جائیں۔ اور مجھے یقین ہی نہیں ہے، دن بھر جو خبریں موصول ہوئی ہیں، لوگوں سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس وقت آپ کے انقلابی چہروں میں، آپ کے آنکھوں میں جو اطمینان اور پیشانی کی لکیروں میں جو طمانینت ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت جناب بھائی بابر خان کو، اگر خدا کو منظور ہے تو اس کی فتح کو کوئی نہیں روک سکتا۔ عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں، اسے منزل آتی ہے نظر اپنی آسمانوں میں۔ اس وقت ہمارے نوجوانوں نے سر پہ کفن باندھ لیا ہے اور یہ تلاش گم شدہ، وہ چیز جو ہماری کھو گئی ہے، اس کی تلاش میں نکلا ہے۔ وہ چیز کیا تھی؟ مسجد کے مینارے ٹوٹے آزادی کے وقت، لیکن ہم نے اس سے اونچے مینارے بلند کر لیے۔ ہمارے مدارس جلا دیے گئے، لیکن ہم نے یونیورسٹیوں کی عمارتوں کو شرما دینے والی عمارتیں کھڑی کر دی۔ ہمارے خانقاہوں کو اجاڑا گیا، لیکن ہم نے خانقاہوں کو پھر سے آباد کر دیا۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ دلی کے لال قلعہ پر بیٹھنے والی وہ قوم آج اتنی ڈر کے ساتھ زندگی جی رہی ہے؟ لال قلعہ کی فصیل کی عظمت جن سے وابستہ تھی، وہ آج خوف کے سمندر میں ڈوب رہی ہے۔ قطب مینار کی بلندی جس کے عزم اور ارادے کا پتہ دیتی تھی، آج وہ قوم پاتال کی طرف جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے مسجدوں کے مینارے تو بلند کر لی، ہم نے خانقاہوں کو پھر سے آباد کر لیا، ہم نے مدارس پھر سے قائم کر لیے، لیکن ایک بڑی چیز جو ہم سے چھوٹ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی قیادت سے محروم ہو گئے۔ وہ قیادت کیا سے ہے؟ میں اس کی مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں نوجوانوں۔ مجلس اتحاد المسلمین
हुकूमत साजी का दावा नहीं करती। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जालिम हुक्मरानों के साथ कलमे हक पेश करती है, सदाकत की आवाज पेश करके उसकी टेढ़ी चाल को सीधी करने की ताकत रखती है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो इस वक्त आपके दरमियान में आई है, वो ये कहने के लिए आई है कि तुम डरते क्यों हो, किससे डरते हो? जो खुदा से डरता है वक्त के फिरौन और नमरूदों से नहीं डरता, और जो खुदा से नहीं डरता है वो कीड़े और मकोड़ों से डरता है। और तुम तो खुदा से डरने वाले हो। किसने तुम्हारे सीने में खौफ पैदा कर दी है इन जालिमों की? भाई जनाब सरफराज साहब इंजीनियर ने कहा, और वो पाकीजा जुमला कि ईमान और खौफ एक साथ नहीं रह सकता है। जिसके दिल में खौफ है ईमान नहीं है, और जिसके दिल में ईमान है वहां खौफ को कोई जगह नहीं मिल सकती। चूंकि हमारी नस्ली शहादत इस बात की गवाह है कि हमने हमेशा जालिमों के सामने में सर उठाकर बात की है, सर झुकाकर हमने बात नहीं की है। सर कटा देना हमें मंजूर हुआ है, लेकिन सर झुकाना हमारी आदत नहीं रही है। उन गुलामों और दलालों के बच्चों को कह दो, जिन लोगों ने अपने नस्लों के लिए गुलामी और दलाली लिख डाली है, वो एमआईएम के करीब नहीं आ सकता। एमआईएम तो परवानों की जमात है, दीवानों की जमात है, नारे नमरूद में कूद जाने वाले इब्राहिमी नस्ल की जमात है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क के कानून को तोड़ा जा रहा है, मुल्क में फिस्ताई ताकतें नंगा नाच रही है, इबलीसी रक्स हर तरफ जारी है। ऐसे वक्त में हमारा और आपका क्या फरीजा है? ऐ गय्योर मुसलमानों, तुम्हारी तो जिम्मेदारी यही है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम वो बेहतरीन पाकीजा जमात हो जो लोगों की भलाई के लिए बर्पा किए गए हो। तुम अच्छे और नेकों का हुक्म देते हो, बुराइयों को रोकते हो, ताकत हो तो पंजा मरोड़ देते हो, ताकत नहीं हो तो आवाज से बुरा कहते हो। चूंकि दिल से भी अगर तुम बुरा न समझो तो तुम्हारा ईमान बाकी नहीं रह सकता, तुम तो वो जमात के लोग। और आज ये दलालों के बच्चे कहते हैं अवैसी बोलता है तो क्या हो जाता है। मैंने कहा है दलालों के बच्चे सुन, तू जब पैदा हुआ था देर से रोया था तो माँ रो रही थी, तेरा रोना तेरे जबान की अलामत थी। बच्चा जब पैदा होता है वो रोता है, उसकी आवाज होती है। और गोंगे तुम कहते हो कि बोलने से क्या होता है, तो मैं तुमको बता देता हूँ कि बोलने से तुम्हारे अब्बा और अम्मा का निकाह हुआ था, उसके बगैर तुम्हारी पैदाइश भी नहीं होती। बोलने से क्या होता है? बोलने से और वहां पर काले बिल को एनआरसी को फाड़ देने के नतीजे में आज भी हुकूमत तिलमिला रही है कि एनआरसी को लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा। बोलने से क्या होता है? सदाकत में अल्लाह ने ताकत दी है। तुमने बारहा ये देखा होगा, एक लंगड़ा और लकवा का बीमार आदमी भी रात के सन्नाटे में अगर निकलता है तो हथियार बन डाकू रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाता है। ये सदाकत की ताकत होती है। और कहते हो बोलने से क्या होता है? हैवाने नातिक है इंसान कि जानवरों से अल्लाह ने मुमताज किया है, तो उसकी सिफत गोयाई के साथ उसको मुमताज किया है। खुदा ने कुरान में भी कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमानियत अपनी सिफत उला का तज़किरा किया तो कुरान मुक़द्दस का तज़किरा किया। और खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, जब इंसान का तज़किरा किया तो उसके सिफत बयानिया का तज़किरा किया। और ये गोंगों की औलादे कहते हैं अवैसी बोलता है तो डर इनको लगता है, अवैसी के साथ कोई बुज़दिल नहीं चल सकता। ये उन्हीं के चलने का नसीब होता है जो गर्दन झुका कर नहीं, गर्दन कटा कर अपनी अज़्म और इरादे को हासिल करना चाहता है। मैं मुनासिब समझता हूँ नौजवानों, इस वक्त डिजिटल दुनिया ने तुम्हें तारीख के बहुत सारे औराक तुमसे छीन लिए। मुल्क की आजादी के तकरीबन 77 साल गुजरे। इन 77 सालों में क्या क्या नहीं देखा हमने। इससे पहले जरा चलो, इस्लाम की आमद के बाद ही से मुसलमान यहाँ आ गए थे। ये मेरे दलितवादी आदिवासी भाइयों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि अवैसी इस देश पर क्या पैगाम दे रहा है। अवैसी का जो एहसान तुम पर है कभी फरामोश नहीं कर सकते। यही वो मुल्क है जहाँ दलित अगड़ों के दरवाजे पर जाता था तो कमर में झाड़ू और हांडी बंदी होती थी। जब अगड़ों की बस्ती में जाता था तो गले में घंटी बंदी होती थी। तुम सवाल कर सकते हो
इंसान के गले में घंटी क्यों? ये बड़े जात के लोग ये कहते थे कि कुत्ते और सूअर को भी मैं देखूंगा तो मेरा इरादा मनहूस नहीं होगा, लेकिन दलितों को जब देखूंगा तो मेरा इरादा मनहूस हो जाएगा। इसलिए दलित का बेटा जब तू बाहर निकलेगा तो गले में घंटी बांध ले। तुम कहोगे कि झाड़ू और उसके कमर में क्या वजह थी? बड़े के दरवाजे पर कुत्ता और बिल्ली भी जाए, सूअर भी जाए तो उनके पांव के निशाना बाकी रह सकते थे, लेकिन बड़े लोगों ने या सामंतों ने कानून बना था मजहब के हवाले से कि दलित का बेटा अगर मेरे दरवाजे पर आए तो उसके नापाक पांव के निशानात नहीं है, वो उल्टा लौट के जाए अपने निशानात को मिटाए। तुम कहोगे कि हांडी क्यों थी? हांडी इसलिए थी कि कुत्ता और सूअर को भी उसके दरवाजे पर मैला करने का हक था, लेकिन एक दलित के थूकने की नहीं थी। अगर थूकने की जरूरत पड़े तो अपनी हांडी में थूकेगा, सामंतों के दरवाजे पे थूक भी नहीं सकता था। उसको किसने, अगर तकरीम इंसानियत का पैगाम किसने पहुंचाया, मानव सम्मान का संदेश किसने दिया? मेरे दलित भाइयों, मैं तुम्हें दावत देता हूं, इतिहास के पन्नों को पढ़ो। जब मुसलमान आया इस मुल्क में तो मुसलमानों ने कहा इंसानों के साथ इंसानों का ये सुलूक, कुत्ता प्लेट को चाट ले तो उसमें खाना खा ले, दलित का बेटा प्लेट में चाटे, प्लेट में नवाला उठाए तो कोई इसमें खाना न खाए। इंसानों के साथ ऐसा सुलूक ऐसा नहीं होने देंगे। सबसे पहले अगर दलितों को गले लगाया तो मुस्लिम सूफियों ने लगाया, हमारे अकाबिरीन ने लगाया। और उसने क्या कहा, संसार का ईश्वर ही एक नहीं है, हम सब इंसान माँ बाप के संतान है। काम हो सकता है उसका, लेकिन सारे इंसानों के बदन का जो लोह वो सबका लाभ है। किसी पैदाइश माँ के पेशानी से नहीं हुई, सबकी पैदाइश माँ के पेट से हुई है। आदमी अपने चाल चलित्र और कर्म से बड़ा होता है, चाल चलित्र से छोटा होता है। रंग की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर कोई छोटा नहीं होता। अगर सबसे पहले दलितों को गले लगाया तो मुसलमानों ने लगाया। वक्त वहीं पे तफसील से बातें की जाए। आज के मेरे दलित नौजवानों, सोच लो जरा सा, संविधान सभा की कहानी पढ़ लो। जब देश की आजादी के वक्त संविधान के निर्माण की बात आई, संविधान सभा का जब इलेक्शन होने लगा तो इन्हीं कांग्रेसियों ने कहा कि इस महार की क्या काम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे, का महार का क्या काम है? ए दलितों, आज जो तुम भटक रहे हो, बहक रहे हो, सुन लो। अगर संविधान सभा में अगर किसी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भेजने का काम किया तो मुसलमानों ने किया। और एससी और एसटी का कानून लागू हुआ, आज मुसलमानों ने छुआछूत को खत्म न करता। आज ये सामंती तुम्हें गले नहीं लगाते, आज तुम्हें भटका रहे हैं, बहका रहे हैं। अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को नाम पर, राम के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। होश आओ, अगर होश में न आओगे तो फिर दलित हो, फिर तुम्हारा उत्थान नहीं हो पाएगा। हम इसके पैगाम दिखाए नौजवानों, जो जमात यहाँ है वो काफी है कि जमशेदपुर पश्चिमी का जो जीत का झंडा होगा वो आपके हाथ में होगा। शर्त ये है कि अखलास के साथ आप उठ जाए। मालूम वालों, इस मुल्क में जात मिटाई, बादशाह की हैसियत से मुगल हो, हमने कायम किया, अंग्रेजों के हाथ में गुलामी की जंजीरों को मुसलमान और हमारे उलमाए काम ढाई। यकीनन है तकरीब इंसानियत का पहलू हो या दूसरा हुक्मरानी का पहलू हो या तीसरा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का मामला हो, हर जगह तुम्हारा सीना चौड़ा होता है, फख्र से सर ऊंचा हो जाता है कि हमारे असलाफ के कितने पाकिज़ा कारनामे थे। लेकिन आजादी के इन 77 सालों की तारीख को पढ़ो, तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। गुजरात का खूनी वाकया तुम्हारे साथ है। माँ के सामने बेटी की आबरू लूटी गई, बाप के सामने में उसकी बेटी को बहाना किया गया, जवान बेटों के सीने पे गोलियां चलाई। ये किसने किया? ये नरेंद्र मोदी के लोगों ने किया। और गुजरात में जो कुछ तुम्हारा किया कभी उसे माफ नहीं कर सकते हो, तनाव करते हो, नहीं कर सकते। तुम बहुत सदन अभी हो, शायद 2002 को खूनी वाकया उसकी खबरें तुम्हारे कानों में नहीं है। इसके आधार पर 47 में मौलाना बड़ा
کہتا ہوں کہ ملک جب آزاد ہوا مسلمان کا حال کیا تھا. کسی باپ کے گھر بیٹی کی آئی ہو, کسی گھر میں خوشی کا کیا ہوگا. اسی وقت اگر بیٹی لاش ٹھیک وہی حال ملک کا دیسی پاکستان کے پاگلوں کا نہیں, ہندوستان ہندوؤں کی ایک بڑی جماعت تھی جس نے بنایا تھا. یہ وفادار مسلمان تھا جس کا میرے باپ دادا کی قبریں ہیں سے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ بھی واقعہ ہوا کہ ملک کی آزادی میں اتنے لوگ نہیں کاٹے گئے جتنا ملک کے بٹوارے میں کاٹے گئے. مسلمانوں کا خوشحال طبقہ گیا, کمزور طبقہ یہاں تھا, یا جس کو اس مٹی سے محبت تھی وہاں رہ گیا. ایسے وقت میں مولانا آزاد نے مشورہ دیا تھا, مسلمانوں الگ سیاسی جماعت مت بناؤ. اس وقت کے حالات تھے, لیکن کچھ دیر کے بعد ہی کیرل کے مسلمانوں نے کہا اس ملک میں سیاست کرنی ہے تبھی ہم عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں. تلنگانہ میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا کانگریسی حکومت کے درمیان آزادی کے بعد. بیرسٹر اسدالدین اویسی کے دادا جناب عبد الواحد اویسی نے پھر سے نعرہ لگایا 5-6 سالوں کے بعد, آؤ اپنی مجلس کو زندہ کرو. کچھ مصلحت کوز بڈھوں نے, کچھ غلامی صفت کے انسانوں نے, کچھ مفاد پرست لوگ اس وقت بھی تھے. اس نے کہا اویسی اتنے لوگوں کی گردنیں کٹ گئی ہیں, تیرے کو صبر نہیں ہوا, کیا باقی لوگوں کی گردن بھی کٹوائے گا. بیرسٹر اسدالدین اویسی کے دادا غریق رحمت کرے اللہ اسے, اس نے کہا سنو, آزاد ہندوستان ایک جمہوری نظام رائج ہے آزاد ہندوستان میں. اس جمہوری نظام میں اگر تم نے اپنے سیاسی جھنڈے اور ڈگر نہیں کیے, تم مصلحت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو سن لو, سر جھکا کر تم جو, لیکن جنم لے سر اٹھا کے دیں گے بھی تو تمہاری نہ سزا جائے گا. آج یہ جو دیکھ رہے ہو, یہ جو دوسری پارٹیوں میں غلامی کرتے ہیں, ان کی تاریخ یہی ہے. یہ سر جھکانے والے لوگ ہیں, ان سے پرواہ نہ کرو. کھٹمل کے ڈر سے خوف سے گھر کو لوگ جلایا نہیں کرتے, دلالوں کے خوف سے کبھی لوگ جنگ ہارا نہیں کرتے. آپ اپنا بے فکر رہو. لوگوں کیا ہوا, دونوں جگہ پارٹی بنی, ایمانداری سے گواہی دو. کیرل کا مسلمان خوشحال ہے جہاں 24% مسلمان ہے, یا 35% آسام کو مسلمان وہ خوشحال ہے. بولو کون ہے خوشحال ہے؟ کیرل بتاؤ 12% مسلمان ہے, تلنگانہ میں اور 27% مسلمان ہے, ویسٹ بنگال میں 20% مسلمان ہے, یو پی میں 18% مسلمان بہار میں ہے, اور 15% مسلمان جھارکھنڈ میں ہے. 15% زیادہ کہ 12%؟ 15%. بتاؤ تلنگانہ کا مسلمان جس شان و شوکت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, ہندو اور مسلم محبت کے ساتھ زندہ ہے, کیا آج 20% کا یو پی ہے, 18% کا بہار ہے, 15% کا جھارکھنڈ ہے؟ نہیں. تو تلاش کرو وجہ کیا ہے. وجہ یہی ہے کہ اور جگہ لوگوں نے غلامی کی سیاست کی ہے, اور کیرل اور تلنگانہ میں مسلمانوں نے اپنی آزاد سیاست کی ہے. یہی نہیں بلکہ آؤ تم مڑ کے دیکھو ذرا سا کہ پہلے بہار میں تھا, لیکن یہاں مرانڈی کی جگہ, کسکو جگہ, پسکو جگہ, سورین جگہ, اور آج بٹے ہوئے بہار میں آج دلتوں کو جو عزت ہے, دلتوں کو جو ہمت ہے, کیا کل کے بہار میں تھا؟ نہیں تھا. اس وجہ سے اپنی سیاسی جماعت بنائی. 90 سے پہلے بھی یادو تھے بہار میں, لیکن اہیر کہلاتے تھے. ساونتوں کے دروازے پر بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی. لالو پرساد آئے تو یادو آگے آ گئے. رام ولاس پاسوان سے پہلے پاسوانوں کی اپنی سیاسی طاقت نہیں تھی. رام ولاس پاسوان نے اپنی جماعت کھڑی کی تو پاسوانوں میں خود اعتمادی پیدا ہوئی کہ اوپر آسمان ہے, نیچے پاسوان. چلو کوئری کرمی کی اپنی جماعت نہیں تھی, نتیش کمار آئے تو کوئری کرمی کو عزت ملی. مایاوتی آئی تو دلتوں کو سمان ملا. ہندو ہو یا مسلمان, جس نے اپنی سیاسی جماعت کھڑی کی اس قوم کو عزت ملی. جس نے حاشیہ برداری کی غلامی اس کا نصیب ہوا. میری باتوں میں صداقت ہے. تو کیا اپنی جماعت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟
MIM اسی جماعت کی آواز کا نام ہے. سنو, ایک انسان کا وزن 70 کلو ہے, 80 کلو ہے. دونوں زانو ان کے کاٹ کیے جائے, 15 کلو 20 کلو تو وزن ہوگا اس کا. امیر زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ زندہ رہے گا, لنگڑا کہلائے گا. دونوں بازو کاٹ دیے جائے, اس کے وزن کتنا ہوگا؟ 5-7 کلو ہوگا, لیکن لولا کہلائے گا, زندہ رہے گا. لیکن گردن یا سر جس کا وزن صرف 3 سے 4 کلو ہے, وہ اگر کاٹ دی جائے تو وہ پھر لاش ہے. یقین جانو, جس جسم میں سر نہیں ہے وہ لاش ہے, جس قوم کا کوئی سردار نہیں وہ بھی لاش کے مانند ہے. اس لیے ہم اپنے دست و بازو کٹا سکتے ہیں, لیکن اپنے سر کو نہیں جھکا سکتے. ایک اور مثال نوجوانوں سنو, ماموں بہت امیر ہو, خالو وقت کا وزیر ہو, پھوپھا بڑا زمیندار ہو, تینوں مر جائے, بچہ یتیم ہوگا کیا؟ کیا ہوگا جمشید پور میں, کیا ہوگا؟ بچہ یتیم ہوگا کیا؟ نہیں. یقیناً ہے, رشتہ دار امیر ہو, ان کی موت سے بچہ یتیم نہیں ہوتا ہے. باپ بیمار ہو, مزدور ہو, ٹھیلا چلائے, باپ جس دن مر جاتا ہے بچہ یتیم ہو جاتا ہے. یقین جانو, باپ کے مرنے سے بچہ یتیم ہوتا ہے. جس قوم کا کوئی لیڈر نہیں وہ قوم بھی یتیم ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اس یتیم کو جو چاہتا ہے دھمکا دیتا ہے. کوئی داڑھی نوچ دیتا ہے, کوئی ٹوپی اچھال دیتا ہے, کوئی بیٹیوں کو کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے. یہی آپ کا کانگریسیوں جواب کانگریس کو اور بھاجپا کو ایک سکے کا رخ مانے. ہندو مسلم انصاف کم ہوگا. بابری مسجد سے مسلمانوں کی میراث نہیں ٹوٹی ہے, ہندوستان کی عظمت ٹوٹی ہے, گنگا جمنی تہذیب ٹوٹی ہے, ہندوستان کا آئین ٹوٹا ہے. لیکن بابری مسجد کا تماشا کس نے کھڑا کیا؟ بابری مسجد میں مورتی کس نے بٹھائی؟ بولو بولو, آواز سے بولو, مورتی کس نے بٹھائی؟ یہ جملہ جو کانگریس کا لے کے پھرتا ہے, کہہ دو کہ تیرے خدا کرنے والے کے ساتھ چلتے ہو تو شرم اللہ اقبال نے بات کہی, پانی کڑی مجھ کو قبر کے بعد جھکا تو غیر کیا تن تیرا دم, بھائی افسروں میں غیر پیدا کیجیے. بابری مسجد میں مورتی بٹھایا کانگریس ہے. یہی اس نے ابھی گجرات کا جو غم فرق نہیں کر سکتے, لیکن جمشید پور کا غم کانگریس ہی نے دیا تھا. ریشمی شہر بھاگلپور کو نظر آتش کس نے کیا؟ کانگریسیوں نے کیا. مراد آباد میں برتن کے شہر میں عیدگاہ میں گولی کس نے چلائی؟ کانگریس نے چلائی. مسلمانوں کو ٹاڈا اور پوٹا جیسے کالے قانونوں میں مسلمانوں کو آتنکواد کے نام پر گرفتار کرنے کی سازش کس نے کی؟ اسی کانگریس نے کی. میرے بہت سارے لوگ بولتے ہیں, ابھی میں نوجوانوں سے بات کر رہا تھا, ایک نیتا نے بڑی اچھی مثال دی کہ کانگریس اور BJP میں کیا فرق ہے. ان چمچوں سے کہتا ہوں جو ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں BJP کی بی ٹیم ہے, اے نالائقو, اگر ہمت ہے, تو نے ماں کا دودھ پیا ہے, باپ کے نطفے سے جنم لیا ہے, آ تو ڈائیلاگ کر لے. اگر تیری بات صادق ہوگی تو ہم پارٹی چھوڑ کر چلے جائیں گے, ور تو نہیں تو کم از کم تو توبہ کر لینا. کم از کم کیا کہ آج کانگریس نے جو شرارتیں کی ہے, کیا اسے کبھی معاف کر سکتے ہیں؟ بڑی اچھی کہانی سنائی ایک صاحب نے کہ دیکھو ایک بوڑھا قصائی تھا, وہ مرغا کاٹتا تھا. ان کی طبیعت خراب ہوئی تو اپنے بیٹے کو کنجی دی اس نے اور کہا, بیٹا کل سے تو دکان میں بیٹھے گا اور میں 2-4 دن آرام کر لوں گا. رات کو جب دکان لگانے یا بند کرنے اس کا بیٹا گیا تو مرغوں سے پوچھا کہ کل سے میں ہی دکان میں بیٹھوں گا, آپا بیمار ہے, تم لوگوں سے ایک بات پوچھ لیتا ہوں کہ حلال کرنا اچھا رہے گا کہ جھٹکا کرنا, میں اسی حساب سے کام کروں گا. تو مرغوں نے کہا کہ مجھے مشورہ کر لینے دیجیے. یہ سبھی مرغے خوشی کے مارے شب برات ہو گئی ان کے یہاں. بوڑھے مرغے کے بعد بیٹا تو بڑا نظر دل معلوم پڑتا ہے, اس بوڑھا باپ کو کبھی نہیں ہم لوگوں سے پوچھا, تجھے مرحبت کرا. بوڑھے مرغے سے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تاکہ بیٹا اتنی خوشیاں مناتے ہو, جان تو تمہاری جائے, چاہے حلال کرے یا تم اگر سمجھتے ہو کہ کسائی کے بعد ہے تو اسے کہہ دو کہ تم کاٹے ہی نہیں. صبح ہوئی,
दरवाजा खुला, कसाई का बेटा आया, मुर्गे हसास बसास हाजिर हुए। जब बना रात भर तो नहीं सोए, तेरी हमदर्दी के जुमले ने तमाम लोगों को शब बारात की खुशी बख्श दी है। हम बूढ़े मुर्गे से मशवरा किए हैं, आपने कहा था कि झटका की हलाल, तो जान तो हमारी दोनों हालत बजाएगी, इसलिए अगर आपके दिल में रहम है तो मुझे काटिए मत। कसाई के बेटे ने कहा, अरे कमबख्त, ये तो मेरा पेशा ही है, तू बता कि झटका पसंद है कि हलाल? तो सुन लो नौजवानों, झटके से जो काटे उसका नाम बीजेपी है, होले होले जो हलाल करे उसका नाम कांग्रेस है। क्या हलाल होने के लिए तैयार हो? अगर तैयार नहीं हो तो गर्दन उठा कर जियो। गर्दन हम कटा सकते हैं, गर्दन हम झुका नहीं सकते हैं। इस मुल्क में सुनो, लोकतंत्र की क्या है परिभाषा? जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, टैक्स हम देते हैं, और मुसलमानों में से ज्यादातर लोग विदेश में कमाकर, पत्थर तोड़कर, प्रवासी मजदूर है टैक्स देता है, नौकरी में सबसे हिस्सा कम है, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है मुसलमानों को सबसे कम महरूम रखा जाता है। मेरे गैरतमंद भाइयों, आज देख लो क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में कितनी, लोकसभा में कितनी सीट है? 543। देश में मुसलमान कितने हैं? 15%। कितना होना चाहिए हिस्सा? 80 से ज्यादा होना चाहिए, 20-25 से ज्यादा नहीं। आधे वो गुलाम जो कभी नहीं बोलते, जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोलता है तो किसी के अगले की मजाल उसको चुप करने की नहीं होती। ये गुलाम क्यों नहीं बोलते? मैं जिस इलाके से आया हूं वो किशनगंज का इलाका है, वहां के एमपी मौलाना असराउल्लाह कासमी थे। 2014 में नीतीश कुमार के टिकट से मैं एमपी का उम्मीदवार था, और जब मैंने देखा कि ये लोग बीजेपी से साथ बात कर रहे हैं तो मुझे पल भर भी टिकट फेंकने में देर न लगी। लेकिन वही मौलाना जब जीत कर गए, तलाक बिल का काला कानून जब पार्लियामेंट में लाया गया तो कांग्रेस पार्टी से इसने कहा, मैं आलिम दीन हूं, मैं फिक़ह जानता हूं, अहादीस का मुझे इल्म है, मेरी शरीयत पर हमला हो रहा है, मुझे बोलने की इजाजत दीजिए। कुरान ने कहा, मौलाना आपकी इज्जत और तौकीर अपनी जगह पर है, लेकिन शरीयत के मामले में जबान खोलने की इजाजत नहीं होगी। जिस कांग्रेस पार्टी ने तलाक के बिल पर हमारे मौलाना को बोलने की इजाजत नहीं दी, उस कांग्रेस पार्टी का कोई नेता बस्ती में आए तो उसे कह लो, भूखा हो तो रोटी खा लो, प्यास लगी तो पानी पी लो। लेकिन पार्लियामेंट में तेरे सोनिया का कानून चलता है, मेरे तलाक बिल पर मेरे लीडर को बोलने नहीं दिया, मेरे बस्ती में मेरा कानून चलता है, तुमको भी वोट के बारे में बोलने की इजाजत नहीं। नौजवानों, गैरत पैदा करो अपने दरमियान में। जिस कौम में गैरत नहीं होती, कुत्ते और इंसान में क्या फर्क है? इंसान ज्यादा वफादार कुत्ता होता है, लेकिन कुत्ते को गैरत नहीं होती। रोटी का टुकड़ा दिखाओ आ जाएगा, डंडे दिखाओ भाग जाएगा, 100 बार करो 100 बार आएगा और भाग जाएगा, क्योंकि कुत्ते को गैरत नहीं होती। लेकिन जो इंसान गैरतमंद है, 3 दिन का भूखा है, उसकी माँ के खिलाफ, उसके बाप के खिलाफ, उसके इज्जत के खिलाफ अगर कोई 2 जुमले बोल दो, वो फाके से मर जाना पसंद करेगा, लेकिन नवाला नहीं उठाएगा। इसका नाम है गैरत। और ये गैरत जिसमें नहीं है, फिर वो कोई इंसान नहीं है। मैं उन बेगैरतों को पैगाम देना चाहता हूं, मेरे भाइयों, भूल कर भटक कर कहां गए हो, आओ अपनी एक जमात खड़ी करो। जरा मुड़ कर तो देखो, बीजेपी मॉब लिंचिंग करती है, मुसलमानों के लाशों पर वो जश्न मनाती है। यशवंत सिन्हा का बेटा, वक्त का वजीर, मुसलमानों के मॉब लिंचिंग करने वालों के गले पर माला डालता है। बताओ ये गुप्ता जी, तुम बताओ, वो दिन रहते हुए ये मुसलमानों से तुमको इतनी नफरत कि जब कोरोना फैलाया तो तुमने मुसलमानों पर इल्जाम धरा, मुसलमानों की दीनी जमातों को तुमने बदनाम किया कि मुसलमानों की तबलीगी जमात और मुस्लिम जमातें कोरोना फैलाती हैं। अगर मेरे चलने से कोरोना फैलता है तो मेरे वोट से भी तुमको कोरोना होगा, तुम मेरे वोट के उम्मीदवार मत बनो। आज देखो कितने लोग मारे गए, एक लंबी लिस्ट है, तकरीबन 52 लोगों की शहादत हुई है मॉब लिंचिंग के जरिए से। आप इनसे जवाब में पूछो कि मुदस्सिर और सरफराज क्यों उठा था? एक नापाक औरत ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी की, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। यह हमारा हक है, ये जमहूरिया आईनी इंसानी अखलाकी हक है। हम जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ उठेंगे। जब हमारे लोगों ने मुजाहरा किया, हमारे नौजवानों को मारा गया, और उस वक्त जिन लोगों ने मारा, जो कातिलों को आज तक पता नहीं लगाया गया, कोई जांच कमेटी नहीं बैठी,
और उल्टे 10,000 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया गया। शादाब को हजारीबाग में, अख्तर अंसारी को 4 बच्चों का बाप पीट कर मार डाला गया। मौलाना शहाबुद्दीन साहब को किसने मारा? मैं पूछना चाहता हूं सरजू राय से, सरजू राय जी जवाब दो। कल तक तुम लाल डायरी लिखा करते थे रघुवर के बारे में, ये बड़ा करप्ट है, आज कहां खड़े हो गए हो? ये लाल डायरी लिख रहे थे, इनके बारे में भी, मन्ना के बारे में भी लिखा, आज करप्शन में कहां आगे बढ़ गए हो? इस वक्त जो सरकार है वो करप्शन में डूबी हुई है। हम 7 जगह लड़कर सरकार बनाने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, हम आपको गैरत दिलाना चाहते हैं कि मेरे भाइयों अपनी क़यादत पैदा करो। मेरी बहनें और चली गई, इसलिए मुझे कहने का हक है। सुनो, कुछ लोग कहते हैं एक आदमी जीत कर क्या करेगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? एक आदमी जीत कर क्या करेगा? उनको बताओ कि 12 बरस तक शादी के कोई बच्चा न हुआ किसी औरत को, और उसके पड़ोसन क्या 5-5 बच्चे हो गए। 12 बरस तक ये अकीर के, फकीर के, इनके उनके पड़ोसन के बच्चे को गोद देती है, लेकिन 12 बरस के बाद उनको अगर बच्चा पैदा हो जाए तो अपने बच्चे को गोद में लेगी कि पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेगी? किनके बच्चे को लोगी? काला कलौटा होगी तब भी लेगी। और चांद से भी ज्यादा खूबसूरत अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हो, उसकी तो पेशानी चूमेगी ना। तो मुझे बताओ कि लोग कहते हैं एक मुझसे क्या होगा? क्या तुम्हारे पड़ोसन में 5 बेटा किसी का पैदा हो गया, तुम्हारा एक हुआ तो अपने बच्चे का गला दाब दोगे क्या? गला नहीं दाबोगे, बल्कि ये कहोगे हम अपने बच्चे को इस तरह तालीम दें, उसकी सेहत ऐसी हो कि मेरा एक उसके 5 पर हावी हो जाए। आज फख्र होना चाहिए कि आज अपनी सब पे एक लीडर पैदा हुआ है। लीडर भी ऐसा कि जब हक बात बोलता है तो जालिम लोग गीदड़ की तरह दब जाते हैं। पार्लियामेंट में जब बोलता है किसी की जुर्रत नहीं होती। मेरे भाइयों, इस दौलत की अहमियत का अंदाजा जरा सा करो। दुनिया में वो कौम जो खुद नहीं बदलना चाहती, कुरान मुकद्दस ने कहा इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको अपनी हालत के बदलने की फिक्र नहीं हो। गांधी ने भी कहा था कि मुल्क की आजादी हुसैनी अज़्म के बगैर नहीं हो सकती। नवासे रसूल इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत किस लिए थी? क्या जागीर की लड़ाई थी? क्या जाहो मनसब की लड़ाई थी? क्या शराबबंदी के खिलाफ लड़ाई थी? क्या नमाज के क़याम की लड़ाई थी? नहीं, बल्कि क़यादत साले हाथों में जाए उसके लिए नवासे रसूल ने गैर साले हाथों में क़यादत न जाए गर्दन कटा देना मंजूर किया, लेकिन गैर साले हाथों पर हाथ नहीं रखा। मेरे भाइयों, ये वोट नहीं है, ये वोट अल्लाह की अमानत है। इस वोट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, अगर कोई एक औरत पैसे की बुनियाद पर जिस्म बेचती है तो तवाइफ कहलाती है। यकीन जानो, पैसे की बुनियाद पर वोट का सौदा जो करेगा वो ज़मीर का सौदा होगा, वो 70 तवाइफों से भी ज्यादा गुनहगार होगा। इसलिए हम कभी वोट का सौदा होने नहीं देंगे। हिंदी मुसलमानों से इस बात पर अमल कर लो कि हम वोट का सौदा होने नहीं देंगे। अपने जमात के सारे लोगों के हाथों में हाथ रखेंगे। हम गैर की परस्तिश नहीं करेंगे। जो मेरे दर्द की आवाज उठाएगा हम उनके साथ चलेंगे। यकीन जानो, तुम्हारी तकदीर भी बदलेगी, तुम्हारी तारीख भी बदलेगी। जिस वक्त यहाँ पर लाल किला में तुम्हारी हुकूमत थी, 100 में 15 नहीं 4 थे। 4 से अगर तुम लाल किला बना सकते थे, बना सके, तो आज 15 की तादाद इस लाल किला की हिफाजत के लिए उठ जाओ। हम आपसे कहने के लिए और फरियाद करने के लिए आए हैं, अपना एक वोट का इस्तेमाल सही तौर पर कीजिए। इतना साले उम्मीदवार, आपके दुख दर्द में साथ रहने वाला उम्मीदवार, उसके मुकाबले में कौन है खड़ा? इसके पासन का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं है। इसलिए आपके एक वोट का हकदार वो है। अपना एक वोट इनके हक में डालिए। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी ने जो तहरीक पूरे मुल्क में चलाई है, दलितों को और मजलूमों को इंसाफ दिलाने की, उस तहरीक का हिस्सा बनिए। क्या आपका दिल इत्मीनान हुआ? क्या सारी पार्टियों ने धोखा दिया कि नहीं? कांग्रेस ने धोखा दिया कि नहीं? बीजेपी ने धोखा दिया कि नहीं? राजद ने आज 15 सालों तक किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। 81 असेंबली के मेंबरों में 15% मुसलमानों का हिस्सा 12 का होता है। 12 तो जीत के जाना चाहिए। जब टिकट ही 4 को मिला है तो कई लोग जा सकते हैं। नौजवानों, अपनी क़यादत खड़ी करने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए हमारी पार्टी कहती है कि
बहुत हुई झंडा बरदारी, अब तय करो हमारी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी है कि नहीं लड़नी है? लड़नी है, मजबूती से लड़नी है। तो आइए हम लोग नारा लगाएं, इनकलाब इनकलाब। जरा खड़े हो जाइए और एक नारे में हमारा साथ दीजिए। पार्टी का एक नारा है, जो औकात में कहूं उसको दोहरा दीजिएगा। इनकलाब इनकलाब। सबने दिया है हमको चोट। जो जुमला मैं बोलता हूं वो जुमला दोहराइएगा। सबने दिया है हमको चोट। मैंने सुना है ये शहर आहन लोहे का शहर है, जमा मर्दों का शहर है। फल्क सगाफ नारे यहां लगते हैं। फल्क सगाफ नारा उसको कहते हैं जिस आवाज से आसमान फट जाए। मर्दों की तरह आवाज लगाओ यार, बोलो, सबने दिया है हमको चोट। सबने दिया है हमको चोट। सबके दिल में है खोट। सबके दिल में है खोट। अब न देंगे बेईमानों को वोट। अब न देंगे बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट। अपनी पार्टी